Hey, good afternoon all and welcome to another live session of Technology Talk. My name is Vineet Narvekar and we are going to talk today on EUI. Yes, Efficient User Interface. What is mean by EUI? दोस्तों आप सभी को पता है कि हम इक्विजन्स के एनवीआरस यूज करते हैं, राइट? वो एनवीआरस के अंदर हमें अगर कैमरा ऐड करना है, हमें प्लेबैक देखना है और बहुत सारी सेटिंग करनी है, तो एक यूजर इंटरफेस हमें दिखता है. So there are the different types of user interface. In most latest user interface is available, that is NVR 4.0, जो ब्लू कलर में आपको दिखाई देता होगा. बहुत सारे हमारे कस्टमर्स ने उसको यूज भी किया है. So वही यूजर इंटरफेस में एक एडवांस चेंजेस आए हैं. एक नया एफिशिएंट यूजर इंटरफेस आप सभी के लिए वहां पे अवेलेबल है हिकविजन के एनवीआर के सीरीज में. So this is the latest efficient user interface. Means what? It's very easy to use, easy to operate, and easy to get functionality of your NVR to you and your end user or your clients. So we know everyone that we as a installer, we as a technicians, we are easily configuring all the functions in your NVR. आपको as a installer सारे के सारे functions NVR के अंदर से बहुत ही अच्छी तरह से ऑपरेट करने आते हैं. कुछ एडवांस सेटिंग भी ऑपरेट कर सकते हो, बट कहीं ना कहीं जब आप वो एनवीआर एंड यूजर को देते हो, उसके साइट पे लगाते हो, उसके बाद एंड यूजर या ऑपरेटर्स है, उनको अगर ये हिकविजन का एनवीआर इजी वे में ऑपरेट करना है तो बहुत सारी डिफिकल्टीज वहां पे वो फेस करते हैं. क्यों? क्योंकि कुछ सेटिंग्स ऐसी है कि जिसके अंदर एडवांस कॉन्फ़िगरेशंस और फंक्शंस भी रहते हैं. सो दैट्स व्हाई देयर इज अ EUI फॉर यू. सो ये EUI एक एफिशिएंट यूजर इंटरफेस के साथ वेरी क्विकली हम कुछ इंपॉर्टेंट और फ्रीक्वेंट सेटिंग्स जो हमें बहुत बार यूज होती है आपके एनवीआर को ऑपरेट करने के लिए, उस फ्रीक्वेंट सेटिंग्स के अंदर हम इजीली एंटर हो सकते हैं. सो दैट्स व्हाई टुडेस सेशन इज ऑन द EUI एफिशिएंट यूजर इंटरफेस ऑन हिकविजन एनवीआर. So welcome to all in this technology talk. Thank you so much for giving your time and joining with me today on this live session of Technology Talk. Hope you are doing well. And जैसे कि हमारे Technology Talk में हम टेक्निकली इस अलग अलग टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस पे डिस्कस तो करते ही है, बट उसके साथ साथ we are giving you a quiz contest. Yes, there is a chance to win the exciting prizes from Equision. आज के इस टेक्नोलॉजी टॉक में भी ये क्विज कॉन्टेस्ट हम खेलेंगे. मैं जो भी इस पूरे EUI के बारे में आपको बता रहा हूँ, in between this I will ask you some questions. Those who will give the right answer of this question will definitely get the chance to win exciting prizes from Equision. But वो आंसर सबसे पहले आपको वहां पे देना है. In entire show of today I will ask you 3 questions. क्वेश्चन आने के बाद आपको उस क्वेश्चन के रिलेटेड कुछ ऑप्शंस मिलेंगे. सही ऑप्शन आपको आपके चैट कमेंट्स में टाइप करना है. So hope you are ready with me to get the quiz, also to get the knowledge on EUI, that is efficient user interface. So let's start about with the presentation कि ये EUI क्या है, क्या-क्या features and functions इसके अंदर मिलते हैं. So this is efficient user interface for EUI. That means efficient user interface आपके NVR के लिए यहाँ पे है. It means it's a new operating system which is developed for efficiently use of your NVR. बहुत ही easy way से आप आपके NVR को अभी ऑपरेट कर सकते हो. So what are the functions you will get it? We'll understand कि ये EUI के अंदर क्या-क्या efficient है. So वहाँ पे efficient design है, efficient connections है. Yes, the camera connectivity is also very efficient. Efficient operations, efficient application, and main important, efficient maintenance. So everything is right now the efficient. You can easily access these all functions and you will get the entire application very efficiently. So बहुत सारे लोगों को पता है कि वैसे तो हिकविजन का जो GUI और ऑपरेटिंग सिस्टम है ये बहुत इजी टू यूज है, इसलिए हम लोग यूज करते हैं, बट इसके ऊपर एक और आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने और इसको इजी बना दिया है ताकि आपके जो एंड कस्टमर है, आपके क्लाइंट्स है, ये भी आपके एनवीआर को इजीली यूज कर सकते हैं. So these are the efficient functions we can use with this NVR. So जैसे कि NVR का फर्स्ट स्क्रीन देखें, is on your screen.
फर्स्ट मेनू अगर हम देखने के लिए जाएंगे, जैसे आप लॉग इन करते हो इस एनवीआर के अंदर, इट विल लुक इन कंप्लीटली डिफरेंट ऑफ कलर. That is a commercial and harmonious color is available with your new EUI. So blue highlight you can see on the screen. There is a proper icon. You can get it on the gray color, as well as complete background is with a black. So it's a very look is fantastic. एक नया लुक है, नया डिजाइन है, नया इंटरफेस है. तो कहीं ना कहीं वहां पे इस एनवीआर को जब एक्सेस करता है आपका एंड यूज कस्टमर, डेफिनेटली इट विल फील वेरी रिच. सो देखते हैं क्या क्या नए ऑप्शंस इस नए इंटरफेस में मिलते हैं. सो इट्स कंप्लीट EUI, एक पूरा EUI इंटरफेस ये 5 मॉड्यूलर सिस्टम के बेस के ऊपर है. सो व्हाट आर द 5 मॉड्यूल्स, व्हाट आर द 5 सेगमेंट्स ऑफ योर कंप्लीट EUI. सबसे पहला मॉड्यूल आपको मिलता है लाइव व्यू. जैसे कि आप देख सकते हो कि लाइव व्यू आपको दिख रहा है. उसके बाद जस्ट कैमरा ऐड किया, लाइव व्यू देखा, उसके बाद इंपॉर्टेंट इज अ प्लेबैक, राइट. So that playback is option is also available for you. You can see the playback का मेनू है. Quickly आप NVR को login करके इसके playback मोड में जा सकते हो. Search is provided, configuration and maintenance. Only 5 modules is available for you. आपका कस्टमर डायरेक्टली ये 5 मॉड्यूल्स के अंदर जाके इजी वे से आपका ये NVR यूज कर सकते हैं. So this is quite efficient, बहुत ही अच्छे फीचर है. हमने कंप्लीट देखा कि 5 मॉड्यूलर सिस्टम ये अवेलेबल है. सो देखते हैं कि वन बाय वन ये फंक्शंस कैसे काम करते हैं. कुछ वीडियोस के अंदर से देखते हैं हाउ इट विल बी वर्क. सो लेट्स वी विल सी. फर्स्ट, जब भी आप ये EUI ऑपरेटिंग सिस्टम वाला एनवीआर कनेक्ट करते हो एंड स्टार्ट करते हो, द ब्रांड न्यू एनवीआर विल गेट पुट अप एंड इट विल आस्क यू फॉर फर्स्ट एक्टिवेशन, राइट. It will ask you for first activation. So we know in the NVR there is an activation process. There is in the IP camera also there is an activation process. कोई भी अगर कैमरा कोई भी इक्वेशन का एनवीआर आप कनेक्ट करते हो तो एक्टिवेट करना बहुत जरूरी है. What is meant by activation? Activation means you require to give a password to your NVR or to your camera. So now this EUI, ये EUI के अंदर दो मेथड है. फर्स्ट मेथड है एक्टिवेशन की, एक्टिवेट EUI मैन्युअली. सो मोस्ट ऑफ द लोगों को पता होगा कि मैन्युअली कैसे एक्टिवेट करते हैं आपके एनवीआर को, राइट. उस एक्टिवेशन करने के लिए हमें उस एनवीआर को पासवर्ड देना पड़ता है. सो लाइक वे ये एक्टिवेशन आप EUI में कैसे कर सकते हो मैन्युअली, देखते हैं. सो हियर आई विल एक्सप्लेन यू हाउ यू कैन एक्टिवेट दिस EUI मैन्युअली. कैसे दिखता है ये इंटरफेस ये भी हम देखेंगे. शुरुआत में आपको कैसे क्वेश्चन पूछता है ये भी देखेंगे, और कौन सी जगह पे क्या आपको ऑप्शन एंटर करने हैं दैट आल्सो वी विल डिस्कस. सो यू कैन see on your screen how the process is. फर्स्ट उसने पूछा कि लैंग्वेज सिलेक्ट करो. यू रिक्वायर टू सिलेक्ट द लैंग्वेज. सो वी कैन सिलेक्ट हियर द इंग्लिश लैंग्वेज. This is the first step. Then you want to select the display resolution. So I select the display resolution, and third, it will ask to enter a password which is required to set to your NVR. Username by default admin रहेगा, password आपको वहां पे कहीं ना कहीं डालना है. So ये just manual process है, सभी को पता है. Then the important is that reserve email ID. In future, suppose you want to reset a password of your NVR, पासवर्ड रिकवरी या पासवर्ड रिसेट करना है, तो ये रिजर्व ईमेल आईडी यहाँ पे डालना बहुत जरूरी है. सो आई रिकमेंड टू एवरीवन ऑलवेज प्लीज प्रोवाइड वन रिजर्व ईमेल आईडी टू योर एनवीआर और फ्यूचर पासवर्ड रिकवरी ऑफ दिस एनवीआर. सो पासवर्ड रिसेट के बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं. आपको पासवर्ड रिसेट करना है, इजी टू बी यूज करना है पासवर्ड रिसेट मेथड, तो आपको ये रिजर्व ईमेल आईडी देना आपके एनवीआर में बहुत जरूरी है. सो ये तो स्टेट कर लिया. नाउ आप देख सकते हो एक्टिवेट एंड ऑटो. सो राइट साइड में कॉर्नर में, जैसे मेरा वहां पे स्क्रीन दिख रहा है, उस राइट साइड में कॉर्नर में एक्टिवेट एंड ऑटो ये दो बटन है. वहां पे आपको एक्टिवेट के ऊपर क्लिक करना है. सो आई क्लिक ऑन द एक्टिवेट एंड नाउ इट विल आस्क फॉर गिविंग अ पैटर्न. आप चाहे तो पैटर्न दे सकते हो या ये प्रोसेस को स्किप कर सकते हो. रिकमेंड टू प्रोवाइड द पैटर्न ऑन योर एनवीआर. सो नया ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक्टिवेट तो कर दिया. सिंपली विजार्ड के ऊपर आपको लेके आ रहा है. जस्ट विजार्ड आपको फॉलो करना है. बेसिक नेटवर्क सेटिंग्स, कुछ हिट कनेक्ट की सेटिंग्स, कैमरा की सेटिंग्स एंड देन स्टोरेज की सेटिंग्स.
सो सिंपली आपका NVR वहां पे कॉन्फ़िगर हो जाता है। सो आप देख सकते हो, वी कैन सिलेक्ट डेट और टाइम, वी कैन प्रोवाइड अ सिंक्रोनाइजेशन ऑफ योर NVR विद NTP सर्वर। सो आपका टाइम जो है आपके NVR का वो प्रॉपरली रन होता रहे, सही टाइम चलता रहे। देन नेटवर्क सेटिंग, you can enable the DHCP, by default it is on, so you will get directly IP to your NVR, or otherwise if you want to disable, you can disable that. Then hit connect, at the initial level it again also asks to just enable hit connect in simple steps. आपको enable करना है, accept करना है terms and conditions, and then you will get the QR code. You have required to scan this QR code and add this device on your Hit Connect app with verification code. So there is an option to edit the verification code is also available on this GUI. So बहुत ही easy to use method है। शुरुआत में ही एक्टिवेशन करने के बाद जो इनिशियल सेटअप और कॉन्फ़िगरेशन लगता है, ये आपको ये NVR विजार्ड्स के थ्रू प्रोवाइड कर रहा है। Simply click on the next. After Hit Connect, NVR को नेटवर्क के ऊपर लाने के बाद कैमरा एडिंग प्रोसेस, you can add this camera directly. You can change a channel configuration if you require. देन स्टोरेज, आपकी जो हार्ड डिस्क है वो हार्ड डिस्क का स्टेटस आप चेक कर सकते हो। यू कैन सिलेक्ट इट, यू कैन फॉर्मेट दैट हार्ड डिस्क, एंड देन क्लिक ऑन द फिनिश टू कंप्लीट द एक्टिवेशन प्रोसेस। सो दिस इज द प्रोसेस रिगार्डिंग द एक्टिवेशन ऑफ EUI मैन्युअली, एक्टिवेशन ऑफ योर EUI मैन्युअली। बहुत सारे लोगों ने ये प्रोसेस तो की होगी, हमें पता है कि नॉर्मल जैसे NVR 4.0 के अंदर भी सेम टाइप का आपने प्रोसेस वहां पे किया होगा। सो EUI मतलब एफिशिएंट यूजर इंटरफेस में और नया क्या है, बहुत सारे लोगों की क्वेरीज नहीं है कि क्या डिफरेंस इसके अंदर EUI में हमें और मिल रहा है। यस, तो मैं बताना चाहूंगा कि एक्टिवेशन का हमने पहला मेथड तो देख लिया, दैट इज मैन्युअली एडिंग, जो बहुत सारे लोगों को पता भी है, बट there is an auto adding process is also available with this EUI. That's a new and interesting. So let's activate EUI automatically. Yes, बहुत ही नया वर्ड है, एक नया फंक्शन है। EUI को मतलब आपके नए यूजर इंटरफेस को ऑटोमेटिकली एक्टिवेट करना है। That's very good. एंड कैसे एक्टिवेट होता है, कैसे कैमरा उसमें अंदर ऐड होते हैं, ये भी हम देखेंगे। सो देखते हैं इस ऑटो एक्टिवेशन की पहली प्रोसेस क्या है। मैन्युअली तो हमने देख लिया, बट ऑटो एक्टिवेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो आई विल एक्सप्लेन यू हाउ दिस वर्क। सो सबसे पहले एज यूजुअल आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करना है। लैंग्वेज सिलेक्ट करके उसके बाद डिस्प्ले रिजोल्यूशन आप सिलेक्ट कर सकते हो। देन यू रिक्वायर टू पुट द यूजर नेम एंड द पासवर्ड। आप देख सकते हो कीबोर्ड इंटरफेस भी बहुत इजी वहां पे शो हो रहा है, आपको इजीली आप टाइप कर सकते हो कीबोर्ड इंटरफेस पे। Set the result email. If you forgot the device password, you can use this. Then it's an important step. Click on the auto. जैसे ही राइट साइड में मैंने ऑटो के ऊपर क्लिक किया, वैसे ही इस NVR ने ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगरेशन वहां पे करना स्टार्ट कर दिया है। सो एट द राइट साइड कॉर्नर यू विल गेट ऑप्शन ऑफ ऑटो। You require to click on the auto button, then definitely it will start doing the auto configuration. जस्ट सिंपली स्टार्ट किया उसने कैमरा ऐड करने की, कैमरा को सबसे पहले एक्टिवेट किया, देन IP एड्रेस दिया, डायरेक्टली कैमरास को आपके NVR में वहां पे ऐड कर दिया। सिंपली यू कैन सी द लाइव व्यू ऑफ योर NVR। सो दिस इज जस्ट सिंपल एफिशिएंट प्रोसेस। आपने देखा होगा कि ऑटोमेटिकली कैसे ये एक्टिवेट हुआ है। इस केस में हम अगर बात करेंगे कि इस एक्टिवेशन प्रोसेस की, तो इसके अंदर हमने देखा कि ऑटो के ऊपर सिलेक्ट करने के बाद
एनवीआर ने खुद में कैमरा को ऐड करके वहां पे चालू भी कर दिया। सो आपको स्क्रीन के ऊपर वहां पे कैमरा भी दिख रहा है। नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग व्हाट नीड टू बी डिस्कस, ओके, द इंपॉर्टेंट थिंग इज नीड टू बी डिस्कस हियर। सबसे पहले जब ये एनवीआर को आप नेटवर्क के ऊपर आप कनेक्ट करते हो, आपको एनवीआर सबसे पहले एक्टिवेट करना है, दैट मींस उसको यूजर ने पासवर्ड देना है और ऑटो के ऊपर क्लिक करना है। बट मेक श्योर योर कैमरा विच इज कनेक्टेड ऑन द नेटवर्क दैट शुड बी इन द सेम नेटवर्क। आपके जो कैमरा है वो सेम लैन के ऊपर कनेक्टेड रहने चाहिए, नंबर 1। सेकेंड, योर ऑल कैमरा शुड बी इन इनएक्टिव स्टेटस। आपके सारे कैमरा ये इनएक्टिव स्टेटस पे रहने चाहिए। उसके बाद ही ये ऑटो फंक्शन आप जब क्लिक करते हो, उसके बाद ये ऑटो फंक्शन डायरेक्टली आपके सारे आईपी कैमरास को उस एक पर्टिकुलर नेटवर्क सेगमेंट में लाके आपके एनवीआर में ऐड कर देगा। सो इट्स वेरी यूजर फ्रेंडली। नाउ बहुत सारे लोगों को लगता है कि सर आईपी कैमरास का प्रोजेक्ट्स में करता हूँ, आईपी कैमरा, सीसीटीवी आईपी कैमरा और एनवीआर को यूज करते हैं तो थोड़ा सा आईपी एड्रेस देने पड़ते हैं, बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस रहता है। नाउ इट्स वेरी इजी, जस्ट वन बटन, वन सिंगल क्लिक करो एक बटन के ऊपर, ऑटोमेटिकली सारे आईपी कैमरा आपके एनवीआर में ऐड हो जाएंगे। मेक श्योर दैट आईपी कैमरा इन द सेम लैन एंड आईपी कैमरा आर इन द इनएक्टिव स्टेटस। इनएक्टिव स्टेटस में जो आईपी कैमरा एडेड है वो डायरेक्टली ऑटोमेटिकली ऐड होके आपके यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर लाइव दिख जाए। सो दिस इज जस्ट वन प्रोसेस हाउ वी कैन गो एंड हाउ वी कैन एक्टिवेट दिस एनवीआर। सो सभी को पता चला होगा, बट एक बार वापस मैं प्रोसेस को दिखा देता हूं। जस्ट वहां पे आपको यूजर नेम पासवर्ड डालना है, अगेन रिजोल्यूशन को सेट करना है जैसे हमने देखा, पासवर्ड के बाद दोबारा कंफर्म पासवर्ड डालना है और उसके बाद वहां पे कैमरा एक्टिवेशन पासवर्ड, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैमरास के लिए आप एक्टिवेशन जब करते हो, आपका एनवीआर ऑटोमेटिकली कैमरा को जब एक्टिवेट करता है तो क्या पासवर्ड वहां पे उस कैमरा को देना चाहिए, ये पासवर्ड आप यहाँ पे दे सकते हो। We recommend that same password you can keep which you are keeping the password to your NVR. Just simply रिजर्व ईमेल एड्रेस टाइप करने के बाद राइट साइड में बॉटम में वहां पे एक ऑटो बटन है, उसके ऊपर आप क्लिक करोगे। अभी स्क्रीन के ऊपर शायद दिखाई नहीं हो रहा, डायरेक्टली ये कैमरास सारे आपके ऐड हो जाएंगे और आपका लाइव व्यू स्टार्ट हो जाएगा। जस्ट सिंपली यू कैन ड्रैग योर लाइव व्यू, द पोजीशन ऑफ योर कैमरा। मुझे पता है कि ऑटोमेटिकली ऐड करने के बाद बहुत सारे कैमरा की जो पोजीशन है वो आपके हिसाब से नहीं रहेगी। सिंपली आपको कैमरा को सिलेक्ट करके ड्रैग करना है और आपके हिसाब से आपके स्क्रीन के ग्रिड के ऊपर अलग अलग कैमरास को पोजीशनिंग आप कर सकते हो। दिस इज अ वेरी यूजर फ्रेंडली ऑप्शन इज अवेलेबल फॉर ऑल ऑफ अस। Hope you are enjoying this session and you are getting something a new functionality of this NVR. So activate EUI automatically. EUI को हमने manually activate किया, then second step ने हमने automatically activate किया। So now next activate करने के बाद हर एक मॉड्यूल्स के अंदर आते हैं। मैंने जैसे बताया था इट्स अ 5 मॉड्यूलर सिस्टम। सो सबसे पहला मॉड्यूल है लाइव व्यू। लाइव व्यू के अंदर आने के बाद लाइव व्यू को कैसे देखा जाता है, लाइव व्यू के अंदर आप कैसे कॉन्फ़िगरेशंस वहां पे कैसे कैमरास को ऐड कर सकते हो, कैमरास की लिस्ट कहां पे मिलती है, ये सारे फंक्शन जानना बहुत जरूरी है। सो वी विल डिस्कस नाउ ऑन द लाइव व्यू पार्ट ऑफ दिस EUI, वन क्लिक टू गेट कैमरा एडिंग लिस्ट। दोस्तों पता है हमें कि एनवीआर में एक एनवीआर 4.0 वाला एनवीआर अगर आप यूज करते हो, उस ऑपरेटिंग सिस्टम में कैमरा की लिस्ट के अंदर जाना है तो बहुत सारे मेनू के अंदर जाके, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाके आपको ढूंढना पड़ता था कि कैमरा की लिस्ट कहाँ पे है, देन वो ऐड करना पड़ता था। बहुत सारे लोगों को वहां पे जल्दी से ये ऑप्शन मिलता भी नहीं था। सो थोड़ा सा यूजर फ्रेंडली रहे इसलिए ये EUI यहाँ पे डेवलप हुआ है। लेट्स वी कैन अंडरस्टैंड हाउ दिस विल बी वेरी इजी फॉर ऑल ऑफ अस। It's a 3-step to get live view in 1 minute. Yes, a live view within a 1 minute only in the 3-step. What are that 3-step? First of all, set the password. Okay, जैसे हमने इस EUI को एक्टिवेट किया था, स्टार्ट किया था, पासवर्ड दिया था इस EUI को ऑपरेटिंग सिस्टम में, जैसे आपने लास्ट वीडियो में यहाँ पे देखा था। So inactive cameras and inactive NVR will get the first password. Then choose the auto button on the same network segment. Choose a auto button and then auto connection will get start in your camera and your NVR. One more recommendation I want to go over here. अगर आपका ये NVR है जो ऑटो मोड में अगर EUI में काम कर रहा है, then NVR should be a non-PoE NVR. So non-PoE NVR रहेगा, यही NVR डायरेक्टली ऑटोमेटिकली विद इन 1 क्लिक सारे कैमरा को ऐड करके आपके यहाँ पे लाइव व्यू दिखा सकता है।
So there are the three things which required to be considered while adding the camera on your EUI operating system. Number one, the all cameras should be in the same LAN. Number two, the camera should be in the inactive stage. And number three, your NVR should be a non-PoE NVR. So definitely it will work within a minute. A 3-step you can add your camera and start your camera very easily. So ये तो हमने देखा. So सबसे पहले कैमरा ऐड होने के बाद ये लाइव व्यू के फंक्शनलिटी में अगर आते हैं हम, तो लाइव व्यू के फंक्शंस में मैन्युअली भी आपको बहुत बार एडिशनल कैमरा ऐड करने पड़ेंगे. तो क्या उसके लिए अलग से सेटिंग में जाके ऐड करने की जरूरत है? नहीं. लाइव व्यू के स्क्रीन के ऊपर जाओ, जैसे कि शो हो रहा है आपको डिस्प्ले के ऊपर, प्लस साइन आपको हर चैनल के ऊपर दिखेगी जहां पे कैमरा ऐड नहीं है. तो जो ग्रिड वर्टिकुलर आपको दिखाई दे रही है ब्लैक कलर पे, जहां पे कैमरा ऐड नहीं है, वहां पे प्लस साइन मिल रहा है. उस प्लस साइन के ऊपर सिंपली आपको क्लिक करना है एंड देन दिस विल गेट क्विकली सर्च, एक्टिवेट एंड ऐड योर कैमरा इन योर NVR वेरी इजीली. सो कंपैरिजन आप देख सकते हो EUI ऑपरेशन जैसे स्क्रीन के ऊपर दिखा है, EUI ऑपरेशन और कन्वेंशनल NVR ऑपरेशन, कितना फर्क है. EUI ऑपरेशन में आपको 2 स्टेप्स मिल रही है, बट कन्वेंशनल ऑपरेशन में वहां पे आपको 4 स्टेप वहां पे लगे. सो वेरी इजीली जो है कन्वेंशनल NVR रहेगा तो कॉन्फ़िगरेशन में जाना है, कैमरा में जाना है, देन IP कैमरा में जाना है, देन एक्टिवेट करना है एंड देन ऐड करना है. 4 स्टेप लग रहे थे, यहाँ पे 2 ही स्टेप में आपका वेरी इजीली ये काम हो सकता है. So this is just first step. You require to click on the plus sign. Second step, you require to click on the camera list. You will get the list of the camera. आपके नेटवर्क के ऊपर कितने कैमरा है, सिंपली उसका एक लिस्ट ओपन हो जाएगा. उसमें से आप कैमरा को चूज करके आपके NVR में इजीली ऐड कर सकते हो. But you require to know the password of your NVR. You can directly apply the activate and add the NVR in your at the camera in your NVR. Next we will go एड एन IPC क्विकली. सो ये IP कैमरा की सेटिंग्स हमने देखी, कैसे ये IP कैमरा ऐड करते हैं. बट अभी हम देखेंगे कि ये IP कैमरा कैसे ऐड होता है वीडियो के जरिए. सो बहुत सारे लोगों को वहां पे डाउट्स रहता है कि हाउ वी कैन ऐड दिस कैमरा इन NVR. कैमरा NVR के अंदर कैसे कैमरा को एग्जैक्टली ऐड कर सकते हैं. सो आई विल शो यू फॉर योर बेटर विजुअलाइजेशन हाउ इट विल वर्क. सो आपके लिए वीडियो यहाँ पे सामने है. Just you require to click on the plus sign जैसे मैंने कहा था. Then आपके ऊपर एक list of the cameras will get open. आपको select करना है particular camera. You can click on the refresh button to get the entire list of the camera on your network. जो कैमरा नेटवर्क के ऊपर कनेक्टेड है, सारे कैमरा आपको दिखाई देंगे. येलो कलर में जो मार्क दिखाई दे रहा है आपको, वो बता रहा है कि ये कैमरा ऑलरेडी किसी NVR में या डिवाइस पे नेटवर्क पे कनेक्टेड है. चैनल लिस्ट आपको दिखाई देगी. जो IP कैमरा एडेड है, लाइव व्यू चल रहा है, वो ग्रीन कलर में वहां पे चैनल लिस्ट आपको दिखाई देगी. जो कैमरा ऑफलाइन है वो आपको ग्रे कलर में वहां पे दिखाई देगी. सो आप इजीली देख सकते हो कि मेरे कितने कैमरा ऑनलाइन है, कितने कैमरा ऑफलाइन है. कैमरा के नाम वहां पे एक ग्रे कलर के पैटर्न में दिखेंगे. दैट मींस वी कैन से दैट कैमरास आर द ऑफलाइन. सो सिंपल EUI है, जस्ट सिंपली उस लाइव व्यू के सेगमेंट में ही, उस मॉड्यूल में ही जाके आपको प्लस साइन के ऊपर क्लिक करना है और ये फंक्शन आपको यूज करना है और ये कैमरा ऐड करना है. सो हमने देखा कि कैसे इजी ये फंक्शंस हमारे पास अवेलेबल था. होप यू गेट अंडरस्टैंड कि नया फंक्शन है, नया EUI ऑपरेटिंग सिस्टम है, कैसे इजीली आप इसको ऑपरेट कर सकते हो. इफ यू हैव एनी डाउट्स और एनी क्वेश्चंस, यू कैन टाइप इन चैट एंड कमेंट सेक्शन. आई नो एवरीवन हैविंग लॉट्स ऑफ डाउट. बहुत सारे लोगों को क्वेश्चंस आ रहे हैं. आप जस्ट आपके चैट या कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस को टाइप कर सकते हो, बट आई विल गिव यू द आंसर एट द एंड ऑफ द सेशन. सो डेफिनेटली आई कैन अप्रिशिएट योर क्वेरीज विच यू आर आस्किंग टू मी, और मैं डेफिनेटली आपके सारे क्वेश्चंस का ट्राई करूंगा कि सेशन के एंड में आपका सही जवाब उस क्वेश्चंस का दें. और इसी के साथ हम कंटिन्यू होते हैं इस प्रेजेंटेशन के जरिए कि क्या क्या मॉड्यूल और क्या क्या एक्साइटिंग फंक्शंस ये NVR में हमें यहाँ पे मिल रहे हैं. सो नाउ इफ यू आर मूविंग इन केस ऑफ दिस एडिंग IPC, हमने देखा कि एक्टिवेट पहले कैसे करना है, एक्टिवेट के बाद IP कैमरा सिंपल वे में कैसे ऐड करना है, सभी को पता चला होगा. इस 5 मॉड्यूलर सिस्टम इज अवेलेबल फॉर यू. नाउ हिट कनेक्ट ऐप. लाइव व्यू तो आ गया, कैमरा तो मैंने ऐड किया. अभी NVR को वहां पे ऐप के अंदर ऐड करना है. व्हाई?
बिकॉज रिमोटली अगर आपके कैमराज को देखना है, यू रिक्वायर्ड टू ऐड दिस एनवीआर इन हिट कनेक्ट ऐप. So that's why this is a one click to get the Hit Connect app setting menu. बहुत सारे लोगों को वहां पे और कंफ्यूजन रहता है, सर Hit Connect ऐप को ऐड करना है तो Hit Connect का कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड सेटिंग्स है. क्या हमारे एंड यूजर को अगर सपोर्ट चाहिए तो हमें खुद से जाना पड़ता है और एंड यूजर को ये सपोर्ट देना पड़ता है. तो दैट्स व्हाई दिस इज अ वेरी एफिशिएंट यूजर इंटरफेस फॉर यू, जो आपका एंड यूजर भी अभी ये डायरेक्टली ऑनलाइन करने का काम आपके मदद से वहां पे इजीली कर सकता है. सो दैट्स द इंपॉर्टेंट सेटिंग्स व्हिच वी कैन गोइंग टू सी नाउ. दैट इज अ हिट कनेक्ट सेटिंग. आप देख सकते हो आपके इस मेनू के स्क्रीन के ऊपर राइट साइड में कॉर्नर पे वहां पे एक सिंपली क्यूआर कोड दिया है. But simply QR code is given, you just require to scan this QR code and you can directly do the get the adding of this camera on your Hit Connect app. So simple है, setting the Hit Connect or get the device QR code in live view directly. ये सारे ऑप्शन यहाँ पे मिलते हैं. QR कोड के ऊपर क्लिक करते हो आप वहाँ पे, तो वहाँ पे आपको QR कोड शो होता है. उस QR कोड के जरिए आप मोबाइल के ऐप आपके मोबाइल में, आपके एंड्रॉइड या मोबाइल में इजीली आपका जो ऐप है वो इंस्टॉल कर सकते हो. देन उसके नीचे आप देख सकते हो कि हिट कनेक्ट सेटिंग, ब्लू कलर का एक वहां पे सिंबल लिखा है हिट कनेक्ट सेटिंग. उस हिट कनेक्ट सेटिंग के ऊपर आप क्लिक करोगे, सिंपली आपकी सेटिंग उसी स्क्रीन के ऊपर ओपन हो जाएगी. उस स्क्रीन के ऊपर सेटिंग ओपन हो जाने के बाद आपको जिस हिट कनेक्ट को इनेबल करना पड़ता है. आपने देखा होगा कि पुराने GUI में NVR 4.0 में कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म एक्सेस पे, मतलब नेटवर्क सेटिंग में जाके प्लेटफॉर्म एक्सेस का ऑप्शन ढूंढना पड़ता था और उसके अंदर जाके ये सारा चीज आपको इनेबल करना पड़ता था. बट अभी ये इजीली ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है. जस्ट यू रिक्वायर टू इनेबल इट एंड यू कैन डाउनलोड द ऐप फ्रॉम हियर इटसेल्फ एंड यू कैन डू द सेटिंग इजीली फ्रॉम दिस मेनू. इजी टू यूज ऑप्शन है. आपने देखोगे, कंपेयर करोगे कन्वेंशनल ऑपरेशन कैसा था और EUI ऑपरेशन कैसा था, बहुत ही डिफरेंस इसके अंदर नजर आ रहा है. लेट्स वी विल अंडरस्टैंड थ्रू दिस वीडियो कि कैसे सेटिंग्स हम कर सकते हैं. सो यू कैन क्लिक ऑन द QR कोड आइकॉन एट द अपर राइट कॉर्नर टू क्विकली इनेबल द हिट कनेक्ट. आप देख सकते हो ये QR कोड ऑन द स्क्रीन और उसके ऊपर राइट साइड पे आपको ये QR कोड दिख रहा है. So you just require to click on that QR code. आपको QR कोड मिल गया, आप उसको स्कैन करके आप वहां पे डिवाइस एडिंग प्रोसेस कर सकते हो. देन सेटिंग्स में जाओगे, ये इनेबल करोगे हिट कनेक्ट को, बिकॉज आपने नेटवर्क सेटिंग ऑलरेडी की है, तो आपके DVR को NVR को वहां पे नेटवर्क अवेलेबल है. विद दिस सेटिंग्स यू कैन इनेबल दिस एंड यू कैन ऐड दिस डिवाइस. यू कैन प्रोवाइड द इनिशियल सेटिंग्स ऑफ दिस हिट कनेक्ट. तो टर्म्स एंड कंडीशन आपको एक्सेप्ट करना है, इनेबल करना है, हिट कनेक्ट को टाइम सिंक्रोनाइजेशन करना है, वेरिफिकेशन कोड आपके हिसाब से आप सेट कर सकते हो एंड यू जस्ट रिक्वायर टू अप्लाई. सो स्कैन द QR कोड टू डाउनलोड द हिट कनेक्ट QR कोड. हिट कनेक्ट का जो ऐप है, ये एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए भी आपको ये QR कोड इजीली ये इंटरफेस वहां पे प्रोवाइड करना है. सो बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन रहता था कि हिट कनेक्ट वहां पे डाउनलोड करना है, ओके, तो बहुत सारे चैलेंजेस आते थे. अभी डायरेक्टली आपका NVR आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए और इसमें ऐड करने के लिए ये प्रोविजन कर रहा है. सो डेफिनेटली डोंट गेट द एनी चैलेंज. आपको चैलेंज ज्यादा नहीं आएगा. इजीली NVR के थ्रू ही आप ये हिट कनेक्ट ऐप डाउनलोड करके सिंपली आपका जो NVR है आप आपके मोबाइल में ऐड कर सकते हो. सो हाउ द सेटिंग इज दोस्तों, कैसे लगी सेटिंग, कैसा है इजी यूजर इंटरफेस आपको लगा, प्लीज कमेंट सेक्शन में वहां पे टाइप कीजिए. इफ यू रियली लाइक दिस काइंड ऑफ द फंक्शन, प्लीज टाइप यस we like this function in your chat interaction box. Now this we are seeing एक्टिवेट कैसे करना, IP कैमरा इसके अंदर इस NVR में कैसे ऐड करना, एंड इसके साथ साथ हिट कनेक्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल सेटिंग्स होती है वो हिट कनेक्ट कैसे इजीली कॉन्फ़िगर करना, ये हमने ये UI में देखा. होप यू हैव एंजॉय दिस सेटिंग्स. नाउ the most important, that is a quiz time. Yes, it's the most interesting quiz time for all of us. So are you ready for the quiz time? If you are ready, definitely just type yes, you are ready for the quiz time. तो अभी तक जो हमने देखा था ये इजी इंटरफेस, एफिशिएंट इंटरफेस के अंदर क्या क्या वहां पे ऑप्शन हमें मिल रहे थे, सेटिंग करनी होगी तो कैसे सेटिंग करनी है, और बहुत सारी सेटिंग बाकी है जो मुझे शो करनी है आपको. बट उसके पहले हम एक पहला क्विज क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं आपके लिए, जो आपको डेफिनेटली क्विज की तरफ से एक शानदार इनाम आज मिलने वाला है. सो क्या हम इस क्विज क्वेश्चन को स्टार्ट करें? इफ यू आर रेडी, ऑल आर रेडी, प्लीज टाइप यस इन योर चैट इंटरेक्शन बॉक्स. कम ऑन. सो होप सभी का यस अभी मुझे आ रहा होगा. नाउ आई विल
शो योर फर्स्ट क्विज क्वेश्चन। ओके, सबसे पहला क्विज क्वेश्चन क्या रहेगा? ये क्विज कॉन्टेस्ट के अंदर पूरे ये टेक्नोलॉजी टॉक के आज के इस टॉपिक में ऐसे 3 क्वेश्चन मैं आज पूछने जाने वाला हूं। एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद हम थोड़ा सा नॉलेज देंगे, उसके बाद एक क्वेश्चन मैं आपको पूछूंगा, आप सही से जवाब देते हो तो डेफिनेटली विल गेट द चांस टू विन एक्साइटिंग प्राइजेस। सो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। व्हाइल ऑटो एक्टिवेशन प्रोसेस इन EUI, वेट, ये क्वेश्चन का जो ऑप्शन है, ये ऑप्शंस आने के बाद ही आंसर आपको टाइप करना है। वो भी ऑप्शन ए सही है या ऑप्शन बी है, आपको ए या बी यही टाइप करना है, पूरा आंसर राइट नहीं करना है। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन सुनने के बाद जब मैं ऑप्शन दिखाऊंगा तभी आपका टाइम स्टार्ट होगा। आपको टाइप करना है ए, बी, सी या डी, जो भी सवाल, जो भी ऑप्शन राइट रहेगा वो सिर्फ ऑप्शन आपको वहां पे टाइप करना है। सबसे पहले जो ये राइट आंसर विथ ऑप्शन जो गाइडलाइंस मैंने दी है उसके साथ ही सबसे पहले जो आंसर राइट टाइप करेगा उसी को वहां पे इनाम मिलेगा। सो पहला सवाल ये है, while auto activation process in EUI, which of the below cameras will be get added automatically in non-POE NVR? ऑटो एक्टिवेशन की प्रोसेस में नीचे दिए गए हुए कौन सा कैमरा जो है ये डायरेक्टली ऐड हो सकता है इन नॉन POE NVR while auto activation process? Okay, are you ready for get the option? Yes, now I will display the option on your screen. जैसे ही आपके स्क्रीन के ऊपर ऑप्शन डिस्प्ले होते हैं आपको ए या बी सही कौन सा है ये आपको टाइप करना है। So A and B, these are the two options. Your time will start now. Only 15 seconds you have. If you think B is the right, you can type B. If you think A is the right, you can type A. Come on, expecting a right answer from you. While auto activation process in EUI, which of the below cameras will be get added automatically in non-POE NVR? So कैमरा है NVR के अंदर लगे हैं, उसका स्टेटस क्या है, कौन सा कैमरा डायरेक्टली ऐड करके आपका लाइव व्यू स्टार्ट हो सकता है। The answer will be either A or either B. A या B में ही आपको टाइप करना है आपका आंसर। Hope we get the right answer now. So मैंने तो क्वेश्चन पूछा था बट इसका जो सही विनर है, सही विनर का जो नाम है ये एट द एंड ऑफ द सेशन के एंड में मैं जरूर डिक्लेयर करूंगा। विनर कौन है उसका नाम डिक्लेयर करूंगा। सो प्लीज कहीं जाइएगा मत, सेशन के एंड तक रहेगा, शायद आपका नाम वहां पे आपके स्क्रीन के ऊपर आ सकता है। सो डेफिनेटली वेट फॉर अ मोमेंट अप टू द एंड ऑफ द सेशन के एंड में मैं सारे क्वेश्चन का वहां पे सही विनर्स कौन है वो बताऊंगा, बट उसके पहले इस क्वेश्चन का सही आंसर देखते हैं कि क्या है। सो द राइट आंसर विल बी बी, इनएक्टिव कैमरा। जैसे मैंने कहा था कि ऑटो एक्टिवेशन प्रोसेस पे अगर आपके कैमराज ये इनएक्टिव स्टेटस पे है, directly this camera will get added and will get the live view started on your NVR. So new installations में जहां पे आप जाते हो कैमरा डायरेक्टली इनएक्टिव स्टेटस पे रहते हैं, आपका NVR इनएक्टिव स्टेटस पे रहता है, जस्ट आपको NVR को वहां पे पासवर्ड देना है एंड ऑटो एक्टिवेशन प्रेस करना है। डायरेक्टली ऑल द इनएक्टिव कैमरा विल गेट एडेड इन योर NVR within the same lab. So that is the answer of this question. Hope you have enjoyed this session and एक बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है इस सेशन के थ्रू कि कैसे हम NVR को यूज कर सकते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, और क्या क्या फंक्शंस हम देखेंगे, उसके साथ और एक क्विज क्वेश्चन आप सभी के लिए जो इस टाइम पे सही आंसर नहीं दे पाए उनके लिए और एक नेक्स्ट क्वेश्चन मैं वहां पे आपके लिए दिखाने जा रहा हूँ। सो उसके पहले देखते हैं कि नेक्स्ट मॉड्यूल हमारे पास है प्लेबैक के स्क्रीन में वहां पे क्या क्या है वो देखेंगे, क्योंकि प्लेबैक ये एंड यूजर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका जो एंड यूजर है कहीं ना कहीं वहां पे कुछ इंसिडेंस हुआ तो प्लेबैक वेरी एफिशिएंटली सेंस करना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क रहता है। एक शॉर्ट टाइम में क्विकली वहां पे उस फुटेज को, राइट फुटेज को ढूंढ के निकालना ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क, ये सिक्योरिटी एंड सर्विलेंस इक्विपमेंट वहां पे होना चाहिए। सो फॉर दैट देयर इज अ यूजर फ्रेंडली फंक्शंस वी हैव अवेलेबल विद अस। सो देखते हैं कि क्या क्या फंक्शंस यहाँ पे अवेलेबल है। 3 tips on quick playbacks we are providing to you. So tip number 1 click to playback 4 to 8 channels simultaneously. तो प्लेबैक के स्क्रीन में जाओगे आप तो आपको स्क्रीन के ऊपर लेफ्ट साइड में दिख रहे हैं वहां पे 1 to 4 मतलब D1 से लेके D4, देन
D5 से लेके D8। सो सिंगल क्लिक में वहां पे ऊपर दिखा है एक स्क्वायर में 1, 4 और 8। सो ग्रुप प्लेबैक अगर करना है, एक मल्टीपल कैमराज एट ए टाइम सिंगल क्लिक के ऊपर आपको चलाने हैं, तो ये EUI आपको ये फंक्शन प्रोवाइड करता है। मैक्सिमम 8 चैनल्स, आप ध्यान से सुन सकते हो, मैक्सिमम 8 चैनल साइमल्टेनियसली आप इसमें प्लेबैक कर सकते हो। सो ग्रुप प्लेबैक है, इजीली एफिशिएंटली आपको मोस्ट ऑफ द टाइम एक सिंगल कैमरा का प्ले करने से अच्छा सेम टाइम पे साइमल्टेनियसली प्लेबैक आपको चलाना है, सारे कैमरा सिलेक्ट करने हैं। हर कैमरा को सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, जस्ट सिंपली 8 बटन के ऊपर, 8 स्क्वायर के ऊपर वहां पे क्लिक करो, 8 कैमरा डायरेक्टली आपके सामने प्लेबैक करना शुरू कर देंगे। So this is a one kind of a good feature for the end user. Directly आप group playback कर सकते हो. Maximum 8 channel will support for that. One click playback is available for all of us with this. So बहुत ही अच्छा फीचर हमने देखा इस केस में। उसके बाद हम अगर आगे जाके देखेंगे नेक्स्ट, यस, सेकेंड फंक्शन है चूज द डेट विद ब्लू टैब ऑन द कैलेंडर टू प्लेबैक। ओके, कैलेंडर के ऊपर वहां पे ब्लू स्क्रीन रहा है, वहां पे ब्लू कलर का टैब वहां पे दिख रहा है, जस्ट उसके थ्रू आप डायरेक्टली आपकी डेट इजीली वहां पे सिलेक्ट कर सकते हो और प्लेबैक करके देख सकते हो। देन रोलिंग द माउस टू जूम द टाइमलाइन। यस, हमें अगर देखना है कि पर्टिकुलर कौन से टाइम पे ये इंसिडेंस हुआ था, तो 24 आवर, 6 आवर, 1 आवर के गैप के हिसाब से, बार के हिसाब से आप ये प्लेबैक का जो ब्लू कलर का स्ट्रिप आपको दिख रहा है, जिसमें आपका कंटिन्यूअसली कंटिन्यूअस रिकॉर्डिंग वाली फाइल वहां पे स्टोर हुई है, ये सारा ब्लू कलर का जो स्ट्रिप है, उसका हर पर्टिकुलर टाइमलाइन आप इजीली माउस के स्क्रोलिंग के जरिए जूम करके देख सकते हो। तो ऑल द सेगमेंट्स 24 आवर, 6 आवर सेगमेंट्स में आप ये प्लेबैक इजीली देख सकते हो और चेक कर सकते हो एग्जैक्टली कौन से टाइम पे ये इंसिडेंस वहां पे हो रहा है। So this is the quite good function is available on your EUI operating system. Then clip and export record file in playback. Okay, clip and export record file जो end user के लिए बहुत ही important function है कि कैसे clipping करते हैं और easily ये डेटा को export कैसे करना है। तो ये बहुत ही easy function यहाँ पे देखा है। देखते हैं हम इस easy function को कैसे ये work करता है। So आप देख सकते हो कि ये प्लेबैक का वहां पे मोड है। प्लेबैक के मोड पे वहां पे आपका ऑप्शन है लेफ्ट साइड में 1, 4, 8, सारे लिस्ट ऑफ कैमरास आपको मिल रहे हैं। डेट दिखाई दे रही है कि 7 तारीख को वहां पे ये डेटा फुटेज वहां पे स्टोर है। अभी मुझे ये प्लेबैक करके उसके अंदर का डेटा क्लिप एक्सपोर्ट करनी है। सो विल सी हाउ इट विल वर्क। एंटर द प्लेबैक मेनू, सिलेक्ट द चैनल सिलेक्ट करना है आपको। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस जो है, आपको ये डिजायर्ड प्लेबैक के ऊपर जाना है, देन क्लिप के ऊपर क्लिक करना है, देन स्टार्ट टाइम एंड एंड टाइम आपको यहाँ पे मैन्युअली आप देख सकते हो, दे सकते हो वहां पे। सेव करना है इस कॉन्फ़िगरेशन को, जस्ट आपके सामने ये फाइल्स रेडी रहेगी। आपको पेन ड्राइव कनेक्ट करना है, पेन ड्राइव सिलेक्ट करके वहां पे उस पेन ड्राइव के अंदर एक फोल्डर बना के उस फोल्डर के अंदर ये सारी फाइल्स आप सेव रख सकते हो। डायरेक्टली दिस ऑल द फाइल गेट स्टार्टेड डाउनलोडेड। आप डाउनलोडर में फाइल बैकअप के ऑप्शन में देख सकते हो, सारी फाइल्स वहां पे डाउनलोड हो गई है। सो वेरी इजीली और इजी वे से हमने देखा कि ये प्लेबैक का मेनू कैसा है, कैसे उस प्लेबैक को प्ले करके देख सकते हो एक कैमरा के साथ, 8 कैमरा के साथ, और कैसे इजीली हम उसको फाइल को एक्सपोर्ट करके क्लिपिंग कर सकते हैं। ग्रुप प्लेबैक एंड इवेंट प्लेबैक जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रुप प्लेबैक करना है, इवेंटली प्लेबैक करना है, तो कैसे ये ऑप्शन मिल रहे हैं हमको ये देखेंगे। So let's build screen will show you how it will work. Definitely, that's why it's very easily you can search the playback of event or your normal playback, as well as you can start this playback in a group.
सो ग्रुप में भी ये प्लेबैक आप स्टार्ट कर सकते हो। इवेंट का जो है ये ऑरेंज कलर के स्ट्रिप में आपको ये प्लेबैक मिलेगा। नॉर्मल प्लेबैक जो है ये ब्लू कलर में आपको इस EUI में मिल सकता है। सो क्वाइट वेरी इजी, बहुत ही अच्छे और इजी फंक्शंस यहाँ पे आपको मिल रहे हैं। सो ये प्लेबैक तो हमने देखा। नाउ सर्च, मैन्युअली अगर कोई सर्च करना है, कुछ एफिशिएंट कुछ इवेंट हुए हैं आपके पास, आपके कैमरास के अंदर वहां पे बहुत सारे एनालिटिक कैमरा आपने लगाए, ऐसे कोई इवेंट सर्च करने हैं तो सर्च के आपको ऑप्शंस बहुत सारे ये EUI आपको प्रोवाइड करता है। क्या क्या ऑप्शन है, कैसे ऑप्शन है, जस्ट देख लेते हैं। So there are the different options we have available. The option number 1 is search the video of log files. Okay, जो भी रिकॉर्डिंग हो रही है, whatever the recording happening, the important clip you can get the log. Okay, एक इंपॉर्टेंट क्लिप आप लॉक कर सकते हो। एक लॉक सिंबल था प्लेबैक पे, उसके ऊपर क्लिक करने के बाद वो फाइल जो है पर्टिकुलर इवेंट की, पर्टिकुलर मोमेंट की, ये लॉक हो जाती है। दैट मीन्स व्हाट, जब आपका हार्ड डिस्क ओवरराइट होगा तब ये फाइल आपकी इरेज नहीं होगी। सो सर्च मेनू में जाके जस्ट लॉक फाइल सर्च करो, लॉक का ऑप्शन सिलेक्ट करो, डायरेक्टली जो जितनी भी फाइल आपके लिए लॉक करके रखी है सारी आपके सामने वहां पे मिल जाएगी। आपका टाइम वहां पे सेव हो सकता है। पिक्चर, जितने भी अलार्म पिक्चर्स है वो सर्च होके आपके सामने वहां पे NVR EUI प्रोवाइड करेगा। इवेंट, लाइन क्रॉसिंग इवेंट, इंट्रूजन इवेंट, स्मार्ट एनालिटिक्स इवेंट, एनी काइंड ऑफ द इवेंट, जस्ट you require to select it. That particular event files only will get appear on your screen. सो वहां पे बहुत टाइम बच रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, इट इज AccuSense टेक्नोलॉजी। AccuSense टेक्नोलॉजी की हमें पता है कि AccuSense कैमरा अगर हम यूज कर रहे हैं उसके जरिए हम ह्यूमन और व्हीकल फाइल्स को भी सर्च कर सकते हो। तो ये भी आपको सर्च ऑप्शन में यहाँ पे इस NVR में मिल रहा है। सो एफिशिएंट यूजर फेस है, वीडियो सर्च करना है। So in the download section, file backup section, you can see the list of completely files you are getting downloaded. So it's very easy, search करना है वीडियोस को और प्लेबैक करना है. It's common for all of us. So now again there is a next quiz time for all of you. Are you ready for the quiz question? आप सभी लोगों ने वहां पे देखा कि लाइव व्यू कैसे देखते हैं, देन प्लेबैक कैसे देखते हैं. शुरुआत में हमने देखा कि एक्टिवेशन भी इस EUI को कैसे करते हैं. सो नाउ क्विज टाइम है. सेकंड क्विज क्वेश्चन मैं पूछने के लिए जा रहा हूं. आप सभी लोग रेडी हो? प्लीज टाइप यस. We are ready in your chat interaction box. Come on everyone, please type yes in your chat interaction box. So I will display a screen, a second quiz question on your screen. So we will start the second quiz question now on your screen. देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है. जैसे मैंने कहा था सबसे पहले क्वेश्चन रीड करना है, उसके बाद जब मैं ऑप्शन दिखाऊंगा तभी ये ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है, कौन सा राइट ऑप्शन है ये आपको वहां पे टाइप करना है. सो देखते हैं क्वेश्चन क्या है. इन EUI on single click how much maximum channels support to playback simultaneously. मैं अगेन वहां पे बताना चाह रहा हूं आपको राइट आंसर क्या नहीं टाइप नहीं करना है, ऑप्शन राइट कौन सा है ये टाइप करना है, ए, बी, सी या डी. होप यू ऑल आर रेडी टू गिव द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो जैसे ही मैं ऑप्शन आपके स्क्रीन के ऊपर शो करूंगा उसके साथ आपका टाइम स्टार्ट होगा.
सो ए बी सी कौन सा राइट ऑप्शन है? जो भी राइट ऑप्शन रहेगा, राइट आंसर रहेगा, क्विकली आप आपके चैट इंटरेक्शन में वहां पे टाइप कर सकते हैं. So we have a very limited time to give the answer now. Hope right answer आपने दिए होंगे A, B या C. ओके, टाइम अप. सो विनर का नाम तो हम एंड में डिक्लेयर करेंगे कि कौन विनर है इस क्वेश्चन का, बट देखते हैं कि सही या राइट आंसर कौन सा था. सो हमने पूछा था ये क्वेश्चन कि इन यूआई और सिंगल क्लिक के ऊपर कितने मैक्सिमम वहां पे चैनल वहां पे प्लेबैक में आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, कितने चैनल एट ए टाइम आप प्लेबैक वहां पे कर सकते हो. तो राइट आंसर था बी, 8. यस, 8 चैनल साइमल्टेनियसली कैन स्टार्ट प्लेबैक ऑन योर स्क्रीन इन ईयूआई. सो बहुत ही बेहतरीन फीचर हमें मिल रही है, बहुत ही अच्छा ऑप्शंस वहां पे आपको मिल रहा है. इजीली आप 8 चैनल को एट अ टाइम प्लेबैक कर सकते हो. बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया होगा, कुछ लोगों ने मिस किया होगा, आई कैन अंडरस्टैंड, बट उनके लिए और एक क्वेश्चन मेरे पास आने वाला है, दैट इज द थर्ड क्वेश्चन. आप जरूर डेफिनेटली उस क्वेश्चन का राइट आंसर बहुत ही क्विकली दे सकते हो, ये मुझे बहुत ही आपकी तरफ से आशा है. सो देखते हैं अभी और नेक्स्ट हमें इस ईयूआई में क्या क्या हमें मिलने वाला है, क्या क्या फंक्शन है. होप आप सभी लोग इस टेक्नोलॉजी टॉक को कनेक्टेड हो, एंजॉय कर रहे हो और कुछ नया आज सीखने के लिए हमें मिल रहा है, नया ऑपरेटिंग सिस्टम के नए फंक्शंस हमें देखने के लिए मिल रहे हैं. सो देखते हैं अभी नेक्स्ट फंक्शंस क्या क्या हमारे इस ईयूआई में हमारे पास अवेलेबल है. सो हमने लाइव व्यू देखा, प्लेबैक देखा, बट अभी प्लेबैक देखने के लिए रिकॉर्डिंग या बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन तो करनी होती है. सो व्हाट वी कैन सी द कॉन्फ़िगरेशन पार्ट. ओके, fourth module, that is a configure record schedule. Multiple types of recordings we have available with us, so how we can configure that we require to understand. So देखते हैं कि रिकॉर्डिंग की सेटिंग को कॉन्फ़िगर कैसे करना है. So कैसे सेटिंग्स के अंदर जाना है, what option you require to select it for the normal recording or for the event recording. बहुत सारे लोगों का क्वेश्चंस रहता है कि सर मेरे पास वहाँ पे शिफ्टिंग में वहाँ पे काम होता है, सो रात के समय पे कहीं ना कहीं मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है कि कंटिन्यूसली रिकॉर्डिंग मेरा एनवीआर करता रहे. रात के समय में इवेंट बेस्ड मींस मोशन बेस्ड अगर भी रिकॉर्डिंग होती है तो भी ये अच्छा रहेगा. सो कैसे मैं रिकॉर्डिंग के अलग अलग टाइप्स वहां पे सिलेक्ट कर सकता हूँ, कैसे पूरा स्केड्यूल वहां पे क्रिएट कर सकता हूँ, वी कैन सी दिस थ्रू दिस वीडियो. सो फर्स्टली क्लिक ऑन द कॉन्फ़िगर, देन गो ऑन द रिकॉर्ड, गो ऑन द स्केड्यूल मोड, इनेबल दिस. सो कंटिन्यू पे क्लिक करके आपको एक वहां पे मार्कर आ जाएगा, जस्ट यू रिक्वायर टू ड्रॉ on your complete date and click on the apply. So you can clear that again. आपको क्लियर कर सकते हो. Now you want to manually configure it a event based recording as per your time schedule requirement. So simply आप event schedule वहां पे ड्रॉ कर सकते हो. Again you require to manually get the combination of your days. ऑल डे रखना है या पर्टिकुलर डेज को ही आपको रिकॉर्ड करना है, यू कैन डू दैट. इफ डिसेबल द डे फंक्शन डिसेबल है तो आप टाइम कॉन्फ़िगर कर सकते हो. स्टार्ट टाइम, एंड टाइम विद द डेट यू कैन प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर. और उस रिकॉर्डिंग का टाइप क्या रहेगा, इवेंट टाइप रहेगा या कंटिन्यूस टाइप रहेगा, ये आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो. सो आप देख सकते हो बहुत ही कॉमन फीचर है, इजी टू यूज है. बहुत सारे को लगता है लोगों को लगता है कि ईयूआई में कुछ अलग रिकॉर्डिंग का ऑपरेटिंग रहेगा, कुछ अलग सेटिंग रहेगा. नहीं, द सेटिंग्स आर वेरी इजी. सो रिकॉर्डिंग शेड्यूल को कॉन्फ़िगर कैसे करना है एफिशिएंटली, ये हमने देखा. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट मेंटेनेंस. यस, वी आर ऑन द मेंटेनेंस मॉड्यूल. सो मेंटेनेंस में सबसे पहली बात आती है पासवर्ड रिसेट. बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन रहता है कि पासवर्ड रिसेट करना है, क्या यूजर फ्रेंडली ऑप्शन अवेलेबल है. यस, बिकॉज नॉर्मली बहुत सारे हमारे इंस्टॉलर्स है, ये पासवर्ड रिसेट अगर करना है तो डायरेक्टली आपको कॉल करना पड़ता है आपके कॉन्टैक्ट सेंटर में. देन वहां पे इंक्रिप्शन फाइल वहां पे डाउनलोड करके आपको वहां पे प्रोवाइड करनी होती है, एसएडीपी टूल का यूज करना होता है. बट इन सारे चीज को करने के लिए आपके एंड यूजर के पास अगर पासवर्ड रिसेट करनी है प्रोसेस, तो आपके एक इंजीनियर को वहां पे सेंड करना पड़ता है. नाउ this function is very quickly you can do with this EUI. So password reset के easy methods भी यहाँ पे आपको मिल रहे हैं.
दो मेथड में यहाँ पे आपको पासवर्ड रीसेट के बताने के लिए जा रहा हूं। देखते हैं ये पासवर्ड रीसेट के दो मेथड, इजी मेथड कौन से हैं। सो फर्स्ट मेथड इज वी कैन सी resetting the password via Heat Connect ऐप। resetting the password via Heat Connect ऐप, क्या करना है इस पे? सिंपली आपको जस्ट वहां पे चूज करना है और वेरीफाई बाय हीट कनेक्ट। जैसे ही आप पासवर्ड भूल जाते हो, आप जब मेनू के अंदर जाने के लिए ट्राई करोगे, आपको पासवर्ड का स्क्रीन, यूजर नेम और पासवर्ड डालने के लिए वहां पे स्क्रीन आ जाएगा। वहां पे आपको फॉरगेट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करना है। शुरुआत में ही जब लॉगिन करने के लिए जा रहे हो, लॉगिन विंडो में आपको क्लिक करना है फॉरगेट पासवर्ड के ऊपर। वो ऑप्शन आपको दो प्रोवाइड करेगा। फर्स्ट ऑप्शन है वेरीफाई बाय हीट कनेक्ट, उसके ऊपर क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपको क्यूआर कोड मिलेगा, क्यूआर कोड स्कैन करना है एंड वेरिफिकेशन कोड जो है ये आपके मोबाइल के ऊपर आ जाएगा। सो हीट कनेक्ट के ऐप के थ्रू आपको वो क्यूआर कोड स्कैन करके आपको एक कोड मिल जाएगा। वो कोड आपको उस बॉक्स पे, उस एनवीआर के पॉपअप के अंदर वहां पे वो कोड इंसर्ट करना है एंड एनवीआर विल गिव यू टू सेट अ न्यू पासवर्ड। सो सिंपल एंड इजी मेथड है, ये आपको करना है, बट इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, द हीट कनेक्ट अकाउंट नीड टू बी फाउंड विद एनवीआर इन एडवांस। सो ये एनवीआर हम सेट कर रहे हैं, तो ये एनवीआर के अंदर ये एनवीआर ऑनलाइन रहना चाहिए और ये ऑनलाइन एनवीआर के अंदर आपने ये एनवीआर को हीट कनेक्ट में ऐड करके रखना चाहिए। उसके बाद जब अगर इस एनवीआर को वहां पे नेटवर्क नहीं है, सो डेफिनेटली अगेन देयर विल बी द चैलेंज। सो अगेन वी हैव अ वन मोर प्रोसेस फॉर दिस पासवर्ड मेथड, दैट इज अ resetting the password via reserved email ID. So resetting the password via reserved email ID, the email address should be set in advance. तो क्या स्टेप्स है ये देखते हैं कि सबसे पहले जब आप फॉरगेट पासवर्ड में जाते हो, वहां पे चूज ऑप्शन चूज करना है कि पासवर्ड रीसेट का कौन सा ऑप्शन आपको चाहिए। सिलेक्ट करो वेरीफाई बाय ईमेल, ये सेकंड ऑप्शन मिल जाएगा आपको फॉरगेट पासवर्ड की प्रोसेस में, जहां पे क्यूआर कोड को स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद वेरिफिकेशन जो कोड है ये आपके ईमेल के ऊपर सेंड हो जाएगा। देन उसके बाद आपको ईमेल पे ऊपर चेक कर रहे हैं और वो वेरिफिकेशन कोड आपको इस एनवीआर में एंटर करना है। तो डेफिनेटली वेरिफिकेशन कोड आपकी ईमेल के ऊपर सेंड करेगा। दैट मीन्स आपके एनवीआर के अंदर वहां पे रिजर्व ईमेल एड्रेस है, वो देना जरूरी था। तो शुरुआत में एक्टिवेशन जब करते हो, आई रिकमेंड गिव द रिजर्व ईमेल एड्रेस टू योर एनवीआर। तो सिंपली आपके पास वहां पे एनवीआर है, कनेक्टेड है, और एनवीआर के अंदर वहां पे इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है। आपने जस्ट मोबाइल के ऊपर आप इंटरनेट कनेक्टिविटी है, ये क्यूआर कोड स्कैन करके जस्ट वेरिफिकेशन कोड लेके आप डायरेक्टली ये एनवीआर को एक्टिवेट कर सकते हैं। सो इजी टू यूज मेथड है। मेंटेनेंस के अंदर हमने ये दो मेथड देखे। देन कॉन्फ़िगरेशन, सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग्स कॉन्फ़िगरेशन। सो इसके पहले मैं बताना चाहूंगा कि ये EUI, व्हाई दैट is EUI objective, what is the objective behind of this EUI? efficient user interface, easily यूज करना है, इसके लिए ये EUI हम आपके पास लेके आए। तो इस EUI में बहुत सारे दो ऑप्शंस है जो बहुत सारे लोगों को बहुत काम का ये ऑप्शन है। देखते हैं ये कौन से मोड है कॉन्फ़िगरेशन के, ये आपके इस EUI में मिलते हैं। बिकॉज कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग ऐसी है जिसके अंदर आप एज ए इंस्टॉलर और इंजीनियर आप जाके कुछ सेटिंग्स करते हो, तो आपको पता है कि कौन सी सेटिंग सही जगह पे सही से हम करते हैं। पर कभी कभार एंड यूजर भी ये सेटिंग के अंदर जा सकता है, जिसकी वजह से आपका ऑनलाइन एनवीआर ऑफलाइन हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो ये सिंपल मोड वहां पे है जो रखे हैं, जो आपके यूज के लिए इजी टू यूज, ये सिंपल मोड वहां पे अवेलेबल है कॉन्फ़िगरेशन के मॉड्यूल के अंदर। सो देखते हैं ये कौन से मोड आपको मिल रहे हैं इस एफिशिएंट एनवीआर के अंदर। सो टू मोड आर अवेलेबल। फर्स्ट मोड इज अ इजी मोड। ओके, आपके एनवीआर के EUI में एक नई चीज है, इजी मोड मिलता है बाय डिफॉल्ट। आई एम अगेन रिपीटिंग, बाय डिफॉल्ट दिस इजी मोड इज ऑन इन योर एनवीआर। बाय डिफॉल्ट ये इजी मोड ऑन रहता है। ये इजी मोड के अंदर कुछ लिमिटेड सेटिंग, बट ज्यादा फ्रीक्वेंटली जो यूज होती है वही लिमिटेड सेटिंग्स रहती है। ज्यादा कॉम्प्लेक्स सेटिंग्स इस इजी मोड में आपको ये एनवीआर में नहीं मिलेगी। बट अगर आपको कॉम्प्लेक्स सेटिंग या एडवांस सेटिंग के अंदर जाना है, जैसे स्मार्ट इवेंट को इनेबल करना है, नेटवर्क के एडवांस सेटिंग्स में वहां पे जाना है, तो कहीं ना कहीं आपको वहां पे एक्सपर्ट मोड में जाना पड़ेगा। तो लेफ्ट साइड में कॉर्नर पे एक्सपर्ट मोड के ऊपर आप क्लिक करोगे, डेफिनेटली आप एक्सपर्ट सेटिंग में जाके वो एडवांस सेटिंग को एक्सेस कर सकते हो। सो एक नई चीज हमने देखी कि दो मोड, इजी मोड, एक्सपर्ट मोड, ये दो मोड यहाँ पे इस एनवीआर में अवेलेबल है।
देखते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। जैसे नेटवर्क सेटिंग का हम अगर एग्जांपल लेंगे तो नेटवर्क सेटिंग में आप देख सकते हो कि आईपी एड्रेस से बहुत सारी चीजें सेटिंग्स वहां पे रहती है। उस सेटिंग के अंदर से आप देख सकते हो कि इजी मोड में कितनी लिमिटेड सेटिंग आ रही है, बट एक्सपोर्ट मोड में एडवांस वाली सेटिंग्स आपको इस ईयूआई में मिल सकती है। सो क्वाइट इजी, बहुत ही इजी सेटिंग्स अवेलेबल है और इजी वे से ये इजी मोड में आप एनवीआर को ऑपरेट कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट आपका ये एनवीआर है, उसका कॉन्फ़िगरेशन मॉड्यूल का इंटरफेस है, इसमें आपको ये इजी मोड मिलेगा। एक्सपर्ट पे जाना है तो लेफ्ट साइड में कॉर्नर पे आपको एक्सपर्ट मोड में क्लिक करना है। सो दिस इज इजी सेटिंग। हमने देखा कि कैसे ये इजी वे से आप ये सेटिंग को इसमें कर सकते हो। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज अ मेंटेनेंस का। अगर नेक्स्ट पार्ट देखिए, फर्मवेयर अपग्रेड करना है। अगेन वी हैव वन मोर इंपॉर्टेंट सेटिंग इनसाइड ऑफ दिस। जस्ट फर्मवेयर के सेटिंग्स में जाओ, वहां पे मेंटेनेंस पे ऑनलाइन अपग्रेड में ऑटो डाउनलोड ऑप्शन आता है, करंट वर्जन वहां पे आपको दिखाएगा। देन वहां पे टेस्ट करना है। टेस्ट करने के बाद वो चेक करेगा तो लेटेस्ट वर्जन अवेलेबल है इस फर्मवेयर का या यही लेटेस्ट वर्जन है। इट विल गिव्स यू अ मैसेज ओवर देयर, इफ देयर इज अ लेटेस्ट वर्जन इट कैन गेट कनेक्ट एंड डाउनलोड। Sometime definitely you can understand, you will get the problem of this NVR for the auto upgradation due to the network issue. So definitely you can on that time contact your call to your contact center या टेक्निकल सपोर्ट की आप हेल्प ले सकते हो और सही फर्मवेयर वहां से लेके ये अपग्रेड कर सकते हो इस NVR के अंदर। सो जस्ट दिस इज अपग्रेडेशन सेटिंग्स यू हैव अवेलेबल। जो भी फर्मवेयर आप अपग्रेड करते हो, ये ऑटो अपग्रेड की ऑप्शन के ऊपर सिलेक्ट है, ऑटोमेटिकली NVR नेटवर्क के ऊपर से फर्मवेयर यहाँ पे डाउनलोड होके आपके हार्ड डिस्क में यहाँ पे सेव हो सकता है। इट विल बी गेट डाउनलोडेड ऑटोमेटिकली। सो जस्ट टर्न ऑन द HickConnect app and also you can upgrade the firmware of your NVR. Again, one more option we have easily to upgrade the firmware of your NVR. Just add this NVR in HickConnect app, select firmware version, check it and upgrade it. If the latest version is there, it will show yes there is a latest version is available. सो दो मेथड है, एक तो एनवीआर से डायरेक्टली कर सकते हो या ऐप के थ्रू भी आप ये मेंटेनेंस के जरिए या अपग्रेडेशन कर सकते हो। सो व्हाइल डूइंग द अपग्रेडेशन इट विल टेक ओनली 3 to 5 minutes in the EUI, while a several time will take with the conventional method, कांटेक्ट करना कॉल सेंटर को एंड देन फर्मवेयर लेना। बट डेफिनेटली EUI जो अभी आपको रिसेंटली अवेलेबल है उसके अंदर ये ऑटो अपग्रेडेशन आप कर सकते हो। Sometimes due to the some issues or the technical issues or the network issue, it cannot be get connected directly to the server or will not get downloaded directly. In that time, definitely you can reach to us and you can contact to the contact center team. So now quiz question 3 आप सभी के लिए, hope you are ready. हम देखते हैं कि quiz question 3 कौन सा है सभी के लिए। So ready रहिए कि मैं क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ आपके लिए। देखते हैं ऑन द स्क्रीन क्या क्वेश्चन है। In EUI, which is default mode of configuration interface? In EUI, which is a default mode of configuration interface? अलग अलग इंटरफेस है, अलग अलग 5 मॉडल थे, उसमें से कॉन्फ़िगरेशन मॉडल का डिफॉल्ट मोड कौन सा है? आपने अगर आंसर अभी दिया है तो डेफिनेटली विल नॉट विनर। मैंने जैसे कहा था ऑप्शन, सही ऑप्शन आपको टाइप करना है, ए है, बी है, सी है या डी है। सो आई विल डिस्प्ले ऑप्शन ऑन योर स्क्रीन नाउ। जैसे ही ऑप्शन आपके स्क्रीन के ऊपर आया है तुरंत आपको वहां पे टाइप करना है okay, so A and B, which is the right option? A and B. So देखते हैं कि कितने लोग सही जवाब दे पा रहे हैं। Very limited time we have, only a few seconds to give the right answer. So EUI में डिफॉल्ट मोड कौन सा रहता है? एक्सपर्ट मोड रहता है, इजी मोड रहता है। सही ऑप्शन डेफिनेटली आपने टाइप किया होगा। देखते हैं राइट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का। यस, इट्स अ इजी मोड। जैसे मैंने कहा था कॉन्फ़िगरेशन मेनू में जाओगे, बाय डिफॉल्ट EUI के अंदर आपको इजी मोड में ये कॉन्फ़िगरेशन का मेनू मिलेगा। एडवांस सेटिंग में जाना है, यू रिक्वायर टू क्लिक ऑन द एक्सपर्ट मोड। सो दिस आर द जस्ट जनरल सेटिंग्स हमने देखी एंड कैसे स्क्रीन के ऊपर हम ये अलग अलग मोड्स आ रहे हैं जो आपको वेरी इजीली यूज करने के लिए वहां पे अवेलेबल है। सो होप यू आर एंजॉयिंग दिस सेशन एंड सभी सेटिंग आपको पता चली होगी। लाइव व्यू से लेके मेंटेनेंस तक 5 मॉड्यूल थे, 5 अलग अलग मॉडल्स में क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन है, कैसे दिखने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी हमने देखा। नाउ इट्स अ टाइम ऑफ द एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के टाइम की अगर बात करें तो एप्लीकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखते हैं कि एप्लीकेशन का सिनेरियो कैसा है, मींस व्हाट की कैसे एप्लीकेशंस इस एरियाज में हो सकते हैं। सो अलग अलग एनालिटिक कैमरा आप लगा सकते हो, उस हिसाब से आपको एप्लीकेशन मिल सकता है। सो सबसे पहले देखते हैं कि एप्लीकेशन की बात करें। फर्स्ट, यस, WAN एंड ISUP सेटअप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग है जिसके अंदर
आप बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग कर सकते हो। बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन रहता है कि जो नेटवर्क कैमरा कनेक्टेड करते हैं, जो कैमरा या जो एनवीआर आप कनेक्ट करते हो, क्या ये एनवीआर इजीली नेटवर्क के ऊपर ऐड कर सकते हैं? ये एनवीआर अगर इजीली नेटवर्क के ऊपर अगर आप ऐड कर सकते हो तो वेल एंड गुड, लैन के ऊपर ही आपके कैमरा आपके एनवीआर में ऐड होगी ही। बट एनवीआर आप हिट कनेक्ट के ऊपर ऑनलाइन करते हो, व्यू कर सकते हो। बट इट्स इंपॉर्टेंट इज दैट क्या हिट सेंट्रल सॉफ्टवेयर है आपके पास, या आपका ये एनवीआर किसी रिमोट कनेक्शन पे, रिमोट साइट पे लगा है, जहां पे एक स्टैटिक आईपी आप प्रोवाइड नहीं कर सकते हो, एक नॉर्मल पब्लिक आईपी वहां पे चल रहा है जो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। बट आपको हिट कनेक्ट वहां पे नहीं यूज करना है, वहां पे कहीं ना कहीं हिट सेंट्रल के अंदर ये एनवीआर को वहां पे ऐड करना है। सो आप ये कैसे ऐड कर सकते हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो उस केस में वहां पे ये जो कैमराज है, इनको आपको वहां पे एनवीआर में ऐड करना है। एनवीआर में ऐड करने के बाद वहां पे ISUP ये प्रोटोकॉल है एनवीआर के अंदर, उसको इनेबल करना है। और ये ISUP प्रोटोकॉल के जरिए आप ये एनवीआर है डायरेक्टली इंटरनेट के ऊपर आप रिमोटली ये आपके हिट सेंटर सॉफ्टवेयर के अंदर ऐड कर सकते हो। सो सिंपल सेटिंग वहां पे प्रोवाइड की है, जस्ट इनेबल करना है वैन को और ISUP को सिलेक्ट करना है। वहां पे आपको सर्वर का एड्रेस डालना पड़ेगा, डायरेक्टली यू कैन ऐड दिस एनवीआर ऑन योर हिट सेंट्रल प्लेटफॉर्म। सो हिट सेंट्रल जो हमारा और एक सॉफ्टवेयर है, एडवांस सॉफ्टवेयर है, जिसके अंदर आप इजीली इस एनवीआर को ऐड कर सकते हो। सो ये एक हमने सेटिंग्स जो इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन रिलेटेड सेटिंग्स हमने देखी इस एनवीआर के अंदर। सेकेंड एप्लीकेशन इफ यू आर गोइंग टू सी, दैट इज एक्यूसेंस कैमरा। ओके, एप्लीकेशंस विद द एक्यूसेंस कैमरा। एक्यूसेंस कैमरास की बात करें तो एक्यूसेंस कैमरास के एप्लीकेशंस के अंदर हम बहुत सारी चीजें वहां पे देख सकते हैं, जैसे कि एक्यूसेंस कैमरा कनेक्ट किया है तो ये सबसे पहले एक्यूसेंस कैमरा के अंदर फंक्शनलिटी है एक्यूसेंस टेक्नोलॉजी आपको प्रोवाइड करने की। दैट मीन्स ये कैमरा आपके व्यू के अंदर ह्यूमन और व्हीकल को ही डिटेक्ट करेगा, अनवांटेड अलार्म्स को डिस्कार्ड करेगा। सो यू रिक्वायर द एक्यूसेंस कैमरा, you require the NVR with EUI firmware or the EUI setup or EUI operating system, and again you require the Hip Connect app. So EUI ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये एक्यूसेंस कैमरा को बहुत ही इजी वे से वहां पे परफेक्टली वर्क करके दे देता है। कैमरा आपका डिटेक्शन ले लेगा करेक्टली, एक प्रॉपर अलर्ट को डिटेक्ट कर लेगा जो ह्यूमन और व्हीकल का प्रेजेंस ही रहे, और एनवीआर उसकी फाइल्स को प्रॉपरली स्टोर करके आपको उसके अलार्म्स और प्लेबैक फाइल्स दिखा सकता है। सो यू कैन इजीली सर्च द इवेंट। सो प्लेबैक में अगर जाते हो, एक्यूसेंस कैमरा है, प्लेबैक में जाते हो तो प्लेबैक्स में ह्यूमन और व्हीकल प्लेबैक ये आप इजीली देख सकते हो। सो दैट मीन्स इट कैन बी गेट इजीली ट्रैक। आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर वीडियो टाइमलाइन जहां पे आपको दिख रही है, जो ब्लू कलर की स्क्रीन है, ब्लू कलर की स्क्रीन के ऊपर जो ब्लू कलर में जो प्लेबैक है ये नॉर्मल प्लेबैक है। बट अगर कोई इंसिडेंस ह्यूमन का हुआ है और व्हीकल का हुआ है तो वो प्लेबैक जो है ये आपको रेड कलर में वहां पे दिखाई देगा। देन अगेन वहां पे और एक वहां पे प्रोसेस है कि ड्रैगिंग, रेड कलर में ड्रैगिंग करना है, मतलब आप जस्ट क्लिक करोगे उस ह्यूमन या उस पर्टिकुलर रेड कलर की क्लिक को, तो उसी मोमेंट का जो फाइल है वो वहां पे आपका प्लेबैक हो सकता है। साथ ही में आप देखोगे कि लेफ्ट साइड में वहां पे कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, वो ऑप्शंस के अंदर एक तो ह्यूमन है और व्हीकल है, ये ऑप्शंस वहां पे दिखाई दे रहे हैं, उसके ऊपर क्लिक करोगे तो डायरेक्टली आपका वहां पे ये प्लेबैक स्टार्ट हो सकता है। सो बहुत ही अच्छे ऑप्शंस वहां पे आपको मिल रहे हैं। इजीली एक्यूसेंस कैमरा भी लगा रहे हो तो भी आप एक्यूसेंस कैमरा के जरिए ये प्लेबैक कर सकते हो। सो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ भी ये EUI आपका वर्क कर सकता है। नेक्स्ट अगर देखने के लिए हम जाएंगे तो कन्वेंशनल और EUI में क्या डिफरेंस रहेगा ये ह्यूमन और व्हीकल्स में। आपको पता है कि कन्वेंशनल एनवीआर में जैसे ही एक्यूसेंस कैमरा हमारे पास तो है, वो एक्यूसेंस टेक्नोलॉजी के जरिए काम करता है, मतलब ह्यूमन और व्हीकल को डिटेक्ट करता है, बट उसकी फाइल्स को सर्च करने के लिए बहुत सारा टाइम अगर जाएगा तो उसको मीनिंग वहां पे नहीं है। सो दैट्स व्हाई EU के अंदर आपको सेपरेट ह्यूमन और व्हीकल ये सेपरेट ऑप्शन मिलते हैं। ये सेपरेट ऑप्शन को क्लिक करने के बाद, सर्च करने के बाद सेपरेटली वो फाइल्स यहाँ पे आपको प्लेबैक हो रही है। सो आप देख सकते हो आपको जो कैमरा चाहिए उस कैमरा को पर्टिकुलरली चूज करो, ह्यूमन को चूज करो या व्हीकल को चूज करो और प्लेबैक को स्टार्ट कर दो, इट विल स्टार्ट गिविंग योर प्लेबैक। सो ये भी ऑप्शंस आपको मिल रहा है। ये सारे ऑप्शंस के साथ आप इजीली इस EUI को ऑपरेट कर सकते हो। एंड कन्वेंशनल एनवीआर का अगर कंपेयर करने के लिए जाए तो कन्वेंशनल एनवीआर से आप इजीली इस EUI को भी यूज कर सकते हो। उसके बाद हम देखते हैं कि क्या और एक ऑप्शन है मोशन डिटेक्शन 2.0। मोशन डिटेक्शन 2.0
So if you're connected to your Acusense camera on your NVR, will definitely this functionality will get the motion detection with 2.0 function. जैसे कि आपने पहले देखा था कि नॉर्मल मोशन डिटेक्शन पहले के जमाने में आ रहा था, जिसमें आपको सिर्फ कोई भी अगर पर्सन मूवमेंट वहां पे होती है, या उस रूम का वहां पे लाइट ऑन होता है, या उस रूम के बाहर वहां पे आउटडोर कैमराज लगाते हो तो ट्रीज का मूवमेंट वहां पे हो रहा है, तो भी आपको वहां पे मोशन डिटेक्शन का अलर्ट आता था. बट नाउ द इम्पोर्टेंट इज दैट यू विल गेट द कंप्लीट ट्रू अलार्म्स. आपको एक्यूरेट अलार्म मिलना बहुत जरूरी है. तो सिंपली मोशन डिटेक्शन का जो फीचर है, ये अभी एडवांस, ये 2.0 वर्जन वाला ये फीचर यहाँ पे अवेलेबल है, जिसके अंदर एक्यूरेट जो अलार्म है, मतलब ह्यूमन पर्सन जब आएगा या कोई व्हीकल आएगी, तभी आपको ये अलर्ट्स प्रोवाइड करेगा मोशन डिटेक्शन के. अदरवाइज इट विल नॉट गिव यू अलर्ट्स ऑफ योर मोशन डिटेक्शन. So that is again one more settings we have seen. So definitely it will work very well with this feature. Motion detection 2.0 advanced motion detection functionality है. Then उसके बाद अगर हम देखेंगे कि और फंक्शन क्या है, सो और फंक्शन की बात करें कि NVR के अंदर कॉन्फ़िगर करना है. बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर that will provide both, means ये मोशन डिटेक्शन व्हीकल और ह्यूमन दोनों इवेंट होने के बाद ही देता है, या कुछ सिलेक्शन का ऑप्शन हमें मिलता है. जस्ट आई वुड लाइक टू से दैट यू रिक्वायर टू गेट द सिलेक्शन ऑप्शन. आप सिलेक्ट कर सकते हो आइदर ह्यूमन चाहिए या व्हीकल चाहिए, दैट यू रिक्वायर टू सिलेक्ट. ओनली इंश्योर दैट आपने जो आईपी कैमरा वहां पे लगाया है, ये Acusense आईपी कैमरा आपने आपके NVRs को वहां पे कनेक्ट किया है. सो ये फंक्शंस हमने देखा. जस्ट इजी मोड में यहाँ पे आपको ये मिल रहा है, मतलब एक्सपर्ट मोड में आपको यहाँ पे ये इवेंट्स कॉन्फ़िगर करने के लिए भी मिल रहे हैं, और सारा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एग्जिस्टिंग कैमरास को सपोर्ट कर रहा है. मोस्टली ये फीचर फंक्शन आपको पता ही थे कैसे ऑपरेट करने के, बट थोड़े इजी वे में अभी ये आपके पास ये सारे फंक्शंस अवेलेबल है. सो नाउ ये फाइल्स को कॉन्फ़िगर करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट इनके सेटिंग की अगर बात करें तो सेटिंग को कैसे देखते हैं, जस्ट आई विल एक्सप्लेन यू थ्रू द वीडियो. कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मोशन डिटेक्शन 2.0 विथ आईपीसी. सो सेटिंग में जाना है, आईपी कैमरा आपने कनेक्ट किया है, आप भी मोशन डिटेक्शन वहां पे कॉन्फ़िगर करने के लिए जा रहे हो. सो कहीं ना कहीं मोशन डिटेक्शन का ऑप्शन है. Acusense कैमरा आपने अगर लगा दिया है, इनेबल कर दो मोशन डिटेक्शन को, आपको मिलेगा चूज करने के लिए ह्यूमन एंड व्हीकल. आपके हाथ में है आपको कैसे चूज करना है, इधर ह्यूमन रिक्वायर्ड, टारगेट रिक्वायर्ड और व्हीकल. यू कैन चूज अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट. होप दिस विल बी वर्क फॉर यू. आपको पता चला होगा ये कैसी सेटिंग्स वहां पे अवेलेबल है. या नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट प्रोडक्ट. ओके, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रोडक्ट की. अगर बात करें तो बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन है, या बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन सा फर्मवेयर वर्जन है. So first of all, I would like to inform that the firmware version of this product is that version 4.30.005. ये firmware version available है. We have discussed that this NVR, this EUI, efficient user interface, ये EUI operating system के लिए operating system जो है NVRs के लिए available है. But कौन से NVRs? स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है 7.1 सीरीज NVRs we have available this operating system that new EUI interface. और Q सीरीज NVR के साथ भी आपको मिलता है. और प्रो सीरीज की बात करें, अगर मैं दोहराना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ आपके लिए, प्रो सीरीज की बात करें तो ये K सीरीज के लिए ये EUI अवेलेबल है. राइट. सो जब भी आप ये EUI को देखते हो कि आपको K सीरीज में, प्रोफेशनल सीरीज में जाओगे तो K सीरीज में आपको ये EUI मिलेगा. I सीरीज की बात करें तो I सीरीज में आपने देखा होगा NVR 4.0 जो ब्लू कलर में हमारा जो मोस्टली जो यूजर इंटरफेस मिलता है, ये ब्लू कलर में आपको I सीरीज में, बिकॉज उसके अंदर बहुत सारी एडवांस फीचर और एडवांस सेटिंग है, इसलिए वो आपको ब्लू कलर में वहां पे I सीरीज में मिलेगा. बट प्रोफेशनल सीरीज में आपको ये EUI जो है ये यहाँ पे K सीरीज में मिलता है. तो EUI की बात करें कि जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे फीचर्स यहाँ पे जैसे कि मिल रही है आपको. एफिशिएंट यूजर इंटरफेस जिसके अंदर आप इजीली प्लेबैक कर सकते हो, सर्च कर सकते हो, पासवर्ड को रीसेट कर सकते हो, और बहुत सारी फंक्शनलिटी, मतलब इन केस ऑफ द प्लेबैक के अंदर भी बहुत सारी फंक्शनलिटी आपको इसके अंदर मिलती है. सो होप आपको पता चला होगा कि एग्जैक्टली वहां पे कैसे आप यूज कर सकते हो इस एफिशिएंट यूजर इंटरफेस को. Okay, all right. So we have seen the latest product जो available है EUI के साथ. Hope ये complete आपको EUI easy to use interface पता चला होगा. And कुछ doubts भी आपको थे, शायद आपने question पूछे थे. I am really appreciate your time you have given to me. आपने जो time
बहुत सारे पिछले 1 घंटे से आप मेरे साथ कनेक्टेड हो और ये सेशन को सुन रहे हो, रियली अप्रिशिएट फॉर दैट। नाउ ये सारा डिस्कस करने के बाद बहुत सारे कुछ पार्टनर्स के हमारे क्वेरीज थी, कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, देखते हैं कुछ क्वेश्चंस का ट्राई करेंगे जवाब देने का कि कौन से क्वेश्चंस हमारे पास मोस्ट प्रोबेबली फ्रीक्वेंटली आते हैं और आपने पूछे थे। So live camera status will be on connected in green color. Yes, the live camera status will be connected. That means the camera which is get connected जो added होता है वो शो आपको वहाँ पे ग्रीन कलर में आपके वहाँ पे UI में पता चलेगा। एंड येलो कलर में जो स्टेटस था वो स्टेटस बहुत सारे लोगों को लगता है कि कैमरा ऑफलाइन है या कुछ कनेक्टेड नहीं, बट दैट येलो कलर मार्क विल डेफिनेटली शोज दैट कैमरा इज कनेक्टेड विथ अदर डिवाइस ऑल्सो। Then what is it possible to get the stream of the cameras on the Android TV? बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि what about the Android TV located at another location? यस, एंड्रॉइड टीवी अगर आप अनदर लोकेशन पे लोकेट कर रहे हो तो डेफिनेटली आपने ये एंड्रॉइड टीवी को रिमोटली कनेक्ट किया होगा। सो एंड्रॉइड टीवीज के अंदर वहाँ पे कहीं ना कहीं आप एप्लीकेशन डाल सकते हो और एप्लीकेशन के जरिए ये कैमरास का व्यूइंग्स वहाँ पे कर सकते हो। सो इट इज नॉट रिलेटेड विथ योर EUI से आपको ये एप्लीकेशंस का या एंड्रॉइड टीवी के ऊपर शो करने के लिए वहाँ पे कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट यस, इंश्योर दैट यू रिक्वायर टू, इफ यू आर गोइंग टू कनेक्ट द स्क्रीन, हाई रिजोल्यूशन स्क्रीन टू योर NVR, हाई रिजोल्यूशन स्क्रीन आपके NVR को कनेक्ट कर रहे हो तो वो पर्टिकुलर डिस्प्ले रिजोल्यूशन आप आपके NVR के EUI की सेटिंग के ऊपर शुरुआत में सिलेक्ट कीजिए, यू विल गेट द प्रॉपर डिस्प्ले। For viewing on the Android, you require the application to install on that and you will get the viewing of your camera. But for that, you require to take the help of the technical support before getting ahead. और एक क्वेश्चन हमने पूछा था एक पर्टिकुलर पर्सन ने, सो विल इट सपोर्ट्स 265 प्लस? अगर मैं कुछ पर्टिकुलर कैमराज लगा रहा हूँ वहाँ पे, सो 265 प्लस ये एडवांस वीडियो कॉम्प्रेशन टेक्नोलॉजी है, क्या ये सपोर्ट करेगा? डेफिनेटली इट विल वर्क 265 प्लस के ऊपर, एक एडवांस कॉम्प्रेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर भी ये काम करेगा। दैट मीन्स अगर आपके वहाँ पे NVR में ये कॉम्प्रेशन टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, 265 अगर आपके NVR पे वहाँ पे अवेलेबल है, आपका कैमरा 265 सपोर्ट कर रहा है, डेफिनेटली ये वर्क कर सकता है। सो मोस्ट ऑफ द 150 to 180 कैमरा साइट के ऊपर आप इंस्टॉल कर रहे हो और ये 265 प्लस को आप इनेबल कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप नेटवर्क के ऊपर वहाँ पे बैंडविड्थ है जिसके ऊपर आपको हाफ ऑफ द बैंडविड्थ वहाँ पे रिड्यूस हो जाएगी और उसकी मदद से आपको मल्टीपल कैमरा नेटवर्क के ऊपर प्रॉपरली वहाँ पे चल सकते हैं, एज वेल एज आपका स्टोरेज भी बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज हो सकता है। So that is the efficient and a good of the part of the efficient compression technology, which is the S.265 plus, which is available latest with your IP cameras. So यहाँ पे ये कुछ सवाल हमारे पास आए थे ऑडियंस पे से। अभी इम्पोर्टेंट बात देखते हैं कि विनर्स। यस, हमने डिस्कस तो बहुत किया, होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, कुछ नई फीचर नए फंक्शन जाने होंगे। कुछ क्विज क्वेश्चन मैंने पूछे थे, 3 सवाल मैंने पूछे थे एंड 3 सवाल के जवाब बहुत सारे लोगों ने दिए हैं। जैसे मैंने बताया कि हर क्वेश्चन को ओनली 2 लकी विनर्स वहां पे अवेलेबल होने वाले हैं, 2 विजेताओं का नाम वहां पे घोषित होने वाला है। तो पर क्वेश्चन को 2 विजेता हमने सिलेक्ट किए हैं। देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के विनर कौन है। मिस्टर अनूप फ्रॉम अभय सर्विसेज पुणे, मिस्टर अनूप from Abhay Services Pune. Second winner of quiz question 1, Mr. Atul Bhai, Active Solution Surat. Mr. Atul Bhai, Active Solution Surat. Congratulations to the first quiz question winner. Second question हमने पूछा था, उसके विनर का नाम देखते हैं। ज्योति खारे, AS Enterprise लखनऊ। And second, Mr. Qureshi, Plus Enterprises Ahmedabad. Mr. Liaquat Qureshi, Plus Enterprises Ahmedabad. Congratulations. थर्ड क्वेश्चन के विनर देखते हैं हम। विनर 1, वेंकट स्वामी, श्री साई एंटरप्राइजेस बैंगलोर। वेंकट स्वामी, श्री साई एंटरप्राइजेस बैंगलोर। सेकेंड विनर, मिस्टर सुमित पंडित, मिस्टर सुमित पंडित from Pandit Infotech, Kolkata. Congratulations to the third question winner.
So that is a very good the discussions happen over here. बहुत ही अच्छा हमने डिस्कशन किया, जैसे कि बहुत सारे फीचर्स हमने यहाँ पे देखे. सो कोलकाता, बैंगलोर, अहमदाबाद, लखनऊ, पुणे, सूरत, वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, सभी जगह से आप इस टेक्नोलॉजी टॉक को देख रहे हो, हमारे शो को पसंद कर रहे हो. डेफिनेटली आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा इस इवेंट को. जिन्होंने मिस किया है उनको प्लेबैक फाइल्स यहाँ पे इसी मोबाइल ऐप के ऊपर आपको मिल जाएगी. एज वेल एज यू कैन get this video on our Hikvision India YouTube channel also. So इस EUI के बारे में आपको पता चला होगा कि कैसे ये EUI है, क्या क्या फंक्शनलिटी इस EUI में आपको मिल रही है और क्या क्या फीचर हमें दिखने के लिए वहां पे मिल रहे हैं. सो फंक्शंस तो बहुत है, एप्लीकेशंस तो इसके अंदर बहुत है. यूज कैसे करना है, बेसिकली आपका अगर एंड यूजर है, एंड यूजर के लिए फंक्शंस कैसे यूज कर सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सो वन ऑफ द क्वेश्चंस वी हैव रिसीव्ड, मैं और एक क्वेश्चन लेना चाहूंगा. एक कस्टमर ने पूछा था व्हाट इज ISUP प्रोटोकॉल. ISUP प्रोटोकॉल का फुल फॉर्म क्या है और ये प्रोटोकॉल क्या है. सो मैं बताना चाहता हूँ ISUP प्रोटोकॉल इट इज अ इंटेलिजेंट सिक्योरिटी अपलिंक प्रोटोकॉल. इंटेलिजेंट सिक्योरिटी अपलिंक प्रोटोकॉल, इट्स अ प्रोटोकॉल ऑफ द Hikvision वेयर यू कैन गेट द डायरेक्ट एक्सेस ऑफ योर NVR ऑन द हिक सेंट्रल सॉफ्टवेयर. तो कहीं ना कहीं फॉर एग्जाम्पल पकड़ के चलिए कि अगर ये NVR है, विद दिस NVR अगर आपका ये रिमोट लोकेशन पे कनेक्टेड है जहां पे स्टैटिक IP और डायरेक्टली एक IP लाइन या नेटवर्क लाइन प्रोवाइड नहीं है, एक कंटिन्यूअसली डायनामिक IP का एक नॉर्मल पब्लिक IP एड्रेस वहां पे प्रोवाइडेड है आपके NVR को, तो उसके लिए आपको हिट कनेक्ट यूज करना पड़ता है. आपको ऑनलाइन हिट कनेक्ट एप्लीकेशन में आपका कैमरास को व्यू करना होता है, ऐड करना होता है. बट कहीं ना कहीं हिक सेंट्रल प्लेटफॉर्म आप यूज कर रहे हो, एक नेक्स्ट लेवल पे बड़े प्रोजेक्ट पे जा रहे हो, तो ये ISUP प्रोटोकॉल अवेलेबल है. जस्ट इनेबल करना है, इसेंशियल सेटिंग करना है, आपको ये डायरेक्टली आपके प्लेटफॉर्म में, हिक सेंट्रल प्लेटफॉर्म में NVR आपका ऐड हो जाएगा. सो ये क्वेश्चन था. ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन के ऊपर हम फ्यूचर में भी डिस्कस करेंगे. अगर आपको लगता है कि बहुत सारा नॉलेज आपको और चाहिए, कुछ और CCTV की टेक्नोलॉजीज के ऊपर जानकारी चाहिए, प्लीज आप कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिएगा कि और क्या क्या टेक्नोलॉजी के बारे में आप मेरी तरफ से जानना चाहते हो. So thank you so much again for joining this session today. Hope you have enjoyed this session. This is Vineet Narvekar and saying thank you so much for all of you. We will meet next time with another topic of technology, another new product. So see you, take care and have a nice day ahead. Thank you so much.